Firstly, Sandhya, congratulations. The success of Dharavi is very good. And tell us something about how did you get the response after the release of Dharavi Bank? And tell us something about your role. Firstly, thank you so much for all the love that I've received from Dharavi Bank. I'm really, really blessed to be associated with this fabulous film. This web series, Dharavi Bank, is very, very special to me because it is my first debut OTT, and of course, Sunil Shetty's debut also. And I've always looked up to him. Such a wonderful person, such a wonderful actor, and his fitness, everything has always inspired me. And to be playing his daughter's role, Parvati, was very, very special. And I am a South Indian, and it took me. Quite something, because in real life, as a model, it was a very glamorous look and feel. But in the movie, I'm playing absolutely plain Jane, the typical Tamilian girl. So I think it was a fantastic experience, and all the love that I've received because of the success, I couldn't be thankful, and gratitude to the universe and God. Thank you. Sandhya, when I saw the series, the Mm-hmm. look was Mm-hmm. quite different. Now the look is quite different. When I saw you the first time, I thought, is that the same Parvati? How did you manage your look? I think I love to do the shocking element. In fact, I would also give a little bit of credit to the casting director Kunal Shah, because he told me, that Sandhya, this could be a game changer for you, because what you are as a model, and even a lot of people who know me personally, I am very simple in real life, and my karate really helps me to ground myself. And this role was absolutely dynamically different, and this plain Jane. But what is acting? It is about playing a character so convincingly that even your mother doesn't recognize. My mother doesn't recognize that it's me, Parvati. But yeah, I love challenges, and I think this role for me was absolutely beautiful and challenging. And do you think it was very easy because being a South Indian girl, Shetty, your father name is also Sunil Shetty, the great, we call him by loving Anna. Was Yeah. it very simple for you? How was the experience working with him? The first time when I in the sets, when I met, uh, they all call him Sulin Anna, and Yes. Anna was absolutely fantastic. I think he's one of the most humble person that I've come across. He actually guided me and told me, that you could probably do this scene this way, and I was like, wow, what an amazing person. And it feels good. Our community is called the Bunt community, and we are proud Chetties. We believe in preserving our culture by speaking the beautiful language Tulu, which is a spoken language. We don't have the script. And also fitness. We are the warrior communities, and Sunil Anna is so fit, and I'm doing karate, and I believe in fitness. I think it's perfect. यस कराटे की आपने जिस तरह चर्चा की कॉमनवेल्थ में आपने गोल्ड मेडल भी जीता एंड गोल्ड मेडल जीतने के बाद डेब्यू इस तरह का कमाल का हुआ थोड़ी बहुत आपकी जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूँगा गोल्ड मेडल टू धारावी बैंक हाउ वाज द जर्नी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ये आप मॉडल रह चुकी हो, और कॉमनवेल्थ कराटे में आपने गोल्ड जीता है, और उसके बाद एक्टिंग का ये करियर जो आपने अभी डेब्यू किया है। मुझे लगता है ज़िंदगी जब मौका देती है ना, तब आपको चौका ज़रूर मारना चाहिए। क्यों नहीं? लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। कराटे हो या मॉडलिंग हो या एक्टिंग हो, आपकी जो ये खूबसूरत ज़िंदगी है, अगर आपने एक्सप्लोर नहीं किया तो क्या किया? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आपके दिल में आए सब कुछ कीजिए। एक ज़िंदगी है, खुल के जिए। तो मुझे ये मंत्र जो है, it's, there is a common phrase they always use, that don't do everything but just be master of one. No, I think you should try everything, and if you can, be master of all. As a model, I made sure that I went and I did my best. As a karateka, I did Commonwealth gold medal for India, and now as an actor, wait and watch. संध्या इस रोल की मैं बात करूँ किस तरह से आपको ऑफर हुआ हाउ दिस रोल केम टू यू um, मुझे लगता है मेहनत जो है,
कहीं नहीं जाती। किस्मत ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी चीज़ है, बट आप जब तैयार हो मेहनत करने के लिए और आपने दिल में ठान लिया है कि भाई कुछ भी हो जाए, आपको ये काम करना है, और मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था कि मुझे अगर कभी भी ऐसे लगे मेरी ज़िंदगी में कि मुझे ये करना है, तो मैं उसके पीछे हाथ, मुँह, पैर सबको धोकर पड़ जाती हूँ, और ज़िंदगी में एटीट्यूड ही वही चाहिए। और बहुत इस फ़िल्म में जब शाहरुख खान ने जब कहा था कि अगर आपने कायनात में एक आवाज़ दे दी और दिल से किसी को चाहा है, तो वो हमेशा होता है, और मुझे लगता है वो 100% ट्रू है। और मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हूँ, और मैं बिलीव करती हूँ कि यूनिवर्स एक ऐसी चीज़ है, जब आप एक आवाज़ दो और दिल से आवाज़ दो और उस पे आप आपकी मेहनत लगा दो, तो आपके हाथ से वो कोई नहीं छीन सकता। धारावी बैंक की मैं बात करूँ, जो सुनील शेट्टी की एंट्री थी, जो अंडरग्राउंड जाके वो एक इंसान रहता है जो कट करता है, वो इस तरह से दिखाया था, इतना नेचुरल दिखाया था, वो कट करते हुए इंसान की हुँ, जो हुँ। ब्लड निकलता है, किस तरह से, मैं उस सीन के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस तरह वो प्रिपेयर हुआ था वो सीन का, क्योंकि काफी नेचुरल लग रहा था, स्क्रीन पे काफी नेचुरल लग रहा था उस scene। देखिए, धारावी बैंक एज़ अ फ़िल्म जो है, मुझे तो जब मुझे ये मौका मिला है कि मैं कुछ फ़िल्म के बारे में बोलूँ, मुझे मुझे ये लगता है कि हमारे ऑडियंस को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो फ़िल्म है, एक बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम्पल है कि टीम वर्क क्या होता है। आपने देखा होगा कि पहले एपिसोड से 10वें एपिसोड तक आपका दिल नहीं करता कि आप सोफ़ा से उठ जाएँ या कुर्सी से उठ जाएँ या स्विच ऑफ कर दें और अगली बार कभी देख लें। I have literally binged watched my own film, whether it is Sunil Anna, whether it is other cast, हमारे जो डायरेक्टर है समित कक्कड़, हमारे जो सिनेमाटोग्राफर है विजय मिश्रा, एडिटर्स, कास्टिंग इतनी बढ़िया हुई है कि एक जो टीम जो साथ में आई है, हमारे आर्ट डायरेक्टर से लेके असिस्टेंट मेकअप हेयर सभी लोगों ने इतना मेहनत किया है, और फिल्म की शूट जो है धारावी में भी हुई है, फिल्म सिटी में भी हुई है, और बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात आपको जाननी ज़रूरी है कि कोरोना के वक़्त भी इसके पोर्शंस हमने शूट किए हैं, और बहुत ज़्यादा सावधानी बरत कर, क्योंकि कोरोना के वक़्त लोगों में इतना डर था, बट उसके बीच में जब आप ये सीन्स देखते हो, यू नो कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं फ़िल्म काफ़ी डार्क है, बट रियलिटी इज डार्क समटाइम्स एंड रियलिटी इज समटाइम्स हैप्पी, और सभी कुछ सिनेमा में दिखाना बहुत ज़रूरी है। इतना कन्विंसिंग सीन्स क्यों लग रहा है, भले वो शूटिंग का हो या बॉडी पार्ट कट करने का हो या इमोशंस हो, इतने ज़्यादा लोगों ने, एक्टर्स ने इसमें जी जान देकर, नेचुरल जो कहते हैं जिसे, जब सुनील अन्ना को मैंने अपने इस फ़िल्म में डैडी बोला है या अप्पा बोला है, कहीं न कहीं मैं दिमाग में ये लेकर चलती थी कि ये मेरे अप्पा है, पीरियड। ये एक्टिंग नहीं है, आई एम देयर। तो मुझे लगता है हर एक कैरेक्टर ने वो बिलीव किया था कि वो थलाइवन की फैमिली है, और थलाइवन की फैमिली को कोई भी टच नहीं कर सकता। क्या कुछ ऐसी बात अगर आप बताना चाहो, फिल्म जिस तरह आपने ही जिक्र किया, फिल्म सिटी में भी शुरू उसकी शूट हुई थी, धारावी में, बट धारावी में हम जैसे देखते हैं, इतनी क्राउड रहता है एंड उसमें शूटिंग करना काफी डिफिकल्ट पीरियड हो जाता है, और इस तरह के सीन्स भी काफी थे, जहाँ पे एक सीन था जहाँ पे सुनील अन्ना को लेके जाते विवेक ओबरॉय, एक सीन था, उस सीन के बारे में, और किस तरह क्या कुछ डिफिकल्टी आप लोगों ने फेस किया था ड्यूरिंग द शूट। देखिए, शॉट टेकिंग और सीन्स के बारे में जो ये डिटेल है, वो ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि हमारे डायरेक्टर जो समित कक्कड़ है, वो ज़्यादा इसके बारे में बता पाएँगे, बिकॉज़ हर शॉट में जहाँ पर हम नहीं हैं एज़ अ कैरेक्टर, हम वो सीन्स लेते वक़्त हम वहाँ पर प्रेज़ेंट नहीं होते, तो उसके इतने सारे डिटेल्स मैं बता नहीं सकती, बट हाँ, जब 1-2 ऐसे सीन्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग थे, जहाँ पर पहली बार जब एक कौवा गिरता है, और जब सुनील अन्ना बहुत बिलीव करते हैं इस फ़िल्म में एज़ अ थलाइवन कि वो एक अपशगुन है, और वो पहला समय होता है जब वो शॉट को लेकर वो घर के बाहर निकलते हैं जो डेंजर पॉइंट्स है, और ये शॉट टेकिंग जब लिया था, वो सीन इतना ज़्यादा इंटेंस था, और वो शॉट टेकिंग के वक़्त, whether it is director, whether it is Sunil Anna, whether it is me, all of us,
जो इंटेंसिटी के साथ हमने वो सीन किया था, कभी कभी तो हम यू नो वी टू नॉट इवन यूज टीयर, यू नो फॉर फेक टीयर्स, वी टू जस्ट क्राई। एंड ये लेवल की इंटेंसिटी थी इस फिल्म शूट करते वक्त। तो आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक फिल्म, एंड फॉर मी इट इज़ जस्ट सच अ फैंटास्टिक डेब्यू। आई लव्ड इट। संध्या, इसके बाद किस तरह के प्रोजेक्ट आपकी तरफ से आने वाले हैं? अगर कुछ आप जिक्र करोगे, क्रिसमस भी आने वाली है, नए साल की शुरुआत होगी, किस तरह से संध्या नए साल की 2023 को देख रहे हैं? देखिए, संध्या शेट्टी 2022 से लेके 2023 में जो जंप लेने वाली हूँ मुझे लगता है, मुझे ना स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, तो मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि मैं हाई जंप के साथ लॉन्ग जंप दोनों साथ में ले लूँ धारावी बैंक के साथ जो मैंने OTT में डेब्यू किया है, अब जाकर मैंने मलयालम फिल्म में डेब्यू किया है। और ऑफ कोर्स मेरे सबसे फेवरेट डायरेक्टर प्रियदर्शन सर के साथ मैंने अभी अभी एक स्केड्यूल कोची में ख़त्म कर मैं आई हूँ। और 2023 में फर्स्ट हाफ में उसकी रिलीज़ होगी, और ऑफ कोर्स उसके बाद 2023 में धारावी बैंक का सेकंड सीज़न भी होगा। तो भगवान की दया से मेरे लिए बहुत ऐसे मौके हैं जो मैं अपने ऑडियंस को बहुत कुछ ऐसा पेश करूंगी जो 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, उनके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। आई थिंक हमारे इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा होगा 2023। मैं विश करती हूँ कि सभी के लिए ये शुभ हो, क्योंकि हम सभी एक बहुत ही भयंकर समय से गुजरे हैं। कोरोना के वक्त बहुत जनों ने बहुत पैसे की तंगी, अपने प्यारे लोगों को जान से गंवाया है। ये महामारी की वजह से हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए हैं। तो मुझे लगता है 2023 हमें बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर प्यार से हमें 2023 में सिर्फ सक्सेस की ओर देखना है। आई एम तो लुकिंग एट सक्सेस, लव, डांसिंग एंड पार्टिंग बहुत सारा पैसा, और थोड़ा अपने लिए और सबके लिए थैंक यू सो मच संध्या, आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ, एंड थैंक यू मैरी सो क्रिसमस मच। एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। और मैं अपने सभी दर्शकों के लिए ये दुआ करती हूँ कि यू हैव अ लॉट ऑफ हेल्थ, गुड हेल्थ, लॉट ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड ब्रिंग इन अ न्यू ईयर विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस, एंड कीप स्माइलिंग थैंक यू। थैंक यू।